Good afternoon, everyone. Welcome to this third BG Varghese lecture. I would firstly would like to welcome all the dignitaries, including the Director General of DME, Delhi Metropolitan Education, Justice Bhavar Singh, sir. I would also like to welcome the Director, Professor Dr. Ravikant Swami, and all the dignitaries who have joined this Zoom meeting on BG Varghese lecture. I am Mohit Kishore Vats, Assistant Professor at DME Media School, that is Delhi Metropolitan Education. Would like to welcome all the guests once again, including the dignitaries, faculty members, and students to the much-awaited third BG Varghese lecture for the current academic session to be delivered by Mr. Punya Prasoon Bajpai, prominent journalist, editor, news anchor, and recipient of Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award on the topic Contemporary Media and Ethical Issues. I would also like to welcome the Director and DG Sir and the host of the session, Professor Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School and Director Studios and Production, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School. Today's lecture is being organized by Delhi Metropolitan Education, which is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BBA LLB and BA JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enable them to take up challenges of the industry and create a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the top media schools in the country, which focuses on the growth of all the faculty as well as its students through academic and co-curricular activities. DME Media School in the past has organized various successful events like Cineaste International Film Festival, CIFI, which was organized in collaboration with Deakin University, Melbourne, Australia in 2019. The next edition of CIFI will be organized next month from December 16 to 19 in a hybrid manner. The theme of the festival would be cinema and COVID-19. The creative collaboration of DME and Deakin University culminated in organizing of ICANN 2 and ICANN 3, that is the second and third edition of the flagship International Media Conference ICANN. ICANN 2 was based on the theme Indian Cinema and Alternate Networks and was held in 2018. The third edition of ICANN, that is ICANN 3, on issues of community, agenda, and news took place in June 2020 as the 10-day Digital Live International Conference and was held over Zoom application adapting with the changing world. All three editions of ICANN saw a huge participation of delegates and experts from different parts of the world. Besides such regular sessions for the students, DME Media School also conducted recently a media literacy course in association with Adamas University, Kolkata, primarily for school students to sensitize them towards the media and media content. Recently, Media School also organized the second edition of Vritika, that is Mega Virtual Media Fest from November 5 to 7, 2020, which had participations from across the country. Additionally, we organize BG Varghese lecture every month with eminent media personalities and experts who deliver special lectures on issues related to media and other subjects of contemporary value. The list of celebrated scholars who spoke in this series includes Mr. N.K. Singh, Ms. Archana Datta, Mr. Prashant Tandon, Mr. Prabhat Shunglu, Professor K.G. Suresh, Mr. Paranjoy Guha Thakurta, Mr. Rajesh Badal, Mr. Harveer Singh, Mr. Subhamoy Bhattacharjee, Dr. Aman Hingorani, and many more. In the previous two online BG Varghese lecture, which were conducted in this academic session, we invited experts from the field of filmmaking and media research to make students understand the basic nuances of the same. Considering the current situation of the debate around news media and TRP, we thought of inviting someone who could explain the basic nuances of the same. Hence, we invited Mr. Bajpai, who kindly consented to be the guest speaker for today's session. Let's now look at the journey of Mr. Punya Prasoon Bajpai. दोस्तों नमस्कार मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दोस्तों मौसम बेहद हसीन है और मनाइए कि कम से कम इस देश का मौसम तो इस देश की राजनीति के हिसाब से नहीं चलता है। आप सेपरेटिस्टों को महत्व देते हैं और सेपरेटिस्ट ये कहते हैं बहुत क्लियर कट सर कि कश्मीर को एक होना चाहिए। उनकी आज़ादी का मतलब ये है। आप एक लकीर खींच चुके हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। आपने कहा कोई अपने छात्रों की अपनी समझ कहां पर है।
वो एक्सप्रेशन जो वो क्लास में खोजते हैं, वो एक्सप्रेशन जो शिक्षा लेने और देने के वक्त उनके जहन में आता है, और जब आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आप वाकई सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो चीजें क्यों गायब इस देश के भीतर से हो गई? जिक्र तो होगा, लेकिन हमें लगता है शुरुआत आज इस बात को लेकर करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के भीतर बार बार यह सवाल आता है कि बैंक से फ्रॉड हो रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने जब इस बात का जिक्र किया कि बीते 20 बरस में हर दिन लगभग 74 करोड़ रुपए भारत के खर्च या भारत की संपत्ति नष्ट हो रही थी। 2014 याद कीजिए, मैनिफेस्टो बीजेपी का, उन्होंने कहा था हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। 57 महीने बीत गए, यानी 5 बरस। अब नया मैनिफेस्टो बनाने की दिशा में बीजेपी बढ़ चुकी है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। पिछले 3 महीनों के दौर में 69,000 करोड़ एनपीए और बन गया। तो ये कौन सा क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें आपकी सहमति है, उनसे आप लोग डोनेशन भी लेते? आप भी नहीं, मतलब कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, 2 कंपनियों से उन्होंने भी लिए हैं और एनपीए के दायरे में भी है। तो ये जो मिला जुला खेल है, एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा हमने निकाला, जो पार्लियामेंट्रीज को पैसा दिया जाता है 5-5 करोड़ रुपया, सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए बैठता है। और एक भी गांव ठीक नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए थे लाल किले से, गांव लीजिए दो, उनका अपना गांव ठीक नहीं हुआ जो उन्होंने बोल दिया जयपुर। बहुत कम मौके होते हैं कि संपादक के साथ किसी रिपोर्टर को याद किया जाए, लेकिन याद किया जा रहा है। राजेंद्र माथुर जी से दिल्ली में मुलाकात हुई है, रिक्शे पर घुमा करते थे। प्रभाष जी के साथ तो बड़ा लंबा वास्ता रहा। प्रभाष जी को इस तरीके से चीज़ों को देखते थे और देते थे, कहते थे कि लिख के भेज दीजिए। मार्च का महीना आता था तो उनका फ़ोन आता था, कुछ लिख के भेजिए, आपका जन्मदिन आ रहा है, आपको गिफ्ट देंगे। संपादकीय पन्ने पर हमारा आलेख छाप दिए रहते हैं। तो एक अपना नज़रिया होता है हर दौर का। Mr. Punya Prasoon Bajpayee has worked at several news networks in his career, including Aaj Tak, where he hosted the weekday show known as Dastak, and ABP News, where he hosted Masterstroke. Mr. Bajpayee is a well-known name in the field of electronic media, with more than 29 years of experience in electronic and print media. He has worked with various reputed media agencies such as Jansatta, Sunday Observer, Sunday Mail, Lokmat, Zee News, and NDTV. He started his career in electronic media with Aaj Tak in 1996 and worked there until 2003. He then moved to NDTV, and in 2007-8, he was editor-in-chief of Sahara Samay. He has worked at Zee News for 4 years as a prime-time anchor and editor before returning to Aaj Tak. In February 2019, he joined Surya Samachar as editor-in-chief, where he also hosts the show Jai Hind and Satta. In 2015, he was one of the 10 most active Indian journalists on Twitter. Mr. Bajpayee has published 6 books, including Rajniti Meri Jaan, Disaster, Media and Politics, Sansad, Loktantra Ya Nazron Ka Dhoka, Adivasiyon Par Tada, and he writes articles for a number of daily and weekly news and literary publications in Hindi, several of which are also publishing or published on his blog. He won the most coveted Ramnath Goenka Award for Hindi print and electronic media in 2005-06 and 2007-08. He is the only journalist to have received this award in TV and print twice. We welcome you, sir. Now, I would like to request the host of today's session, Professor Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School, to kindly formally welcome the guest. Sir, can you please unmute yourself, Ambrish sir? थैंक यू मोहित। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि देश का इतना प्रख्यात, इतना बड़ा पत्रकार हमारे बीच में है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक अपनी अलग तरह की छाप छोड़ी है, और अगर आप मुझसे पूछिए तो टीवी में आज जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसकी लाइट में अगर देखें, या अदरवाइज भी जब से टीवी जर्नलिज्म इस देश में शुरू हुआ, उनसे बेहतर जर्नलिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे आप कंटेंट की बात करें, चाहे प्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये डीएमई मीडिया स्कूल का सभी का सौभाग्य है
कि आज वो हमारे बीच में है और उन्होंने हमारे छात्रों के लिए कुछ समय निकाला है। और बीजी वर्गीज लेक्चर सीरीज में हम लगातार ही अलग-अलग क्षेत्रों के और खासतौर से पत्रकारिता से जुड़े हुए काफी सीनियर लोगों को बुलाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वाजपेयी जी ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, वो बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच था। नॉर्मली हम एक टॉपिक तैयार करते हैं और फिर किसी एमिनेंट आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं, जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें टाइम दे। लेकिन वाजपेयी जी ने सबसे पहले ये कहा कि मैं टॉपिक ऐसे नहीं तय करेंगे, स्टूडेंट से पूछिए कि वो क्या जानना चाहते हैं। तो हमने स्टूडेंट से पूछ के हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स मोहित ने इस काम को किया और सारे स्टूडेंट्स से वो सवाल लिए जो वो जानना चाहते हैं। हमने वो सवाल वाजपेयी जी को उपलब्ध कराए और उसके आधार पे उन्होंने तय किया कि उस जो सवाल है स्टूडेंट्स के, उसके आधार पे वो आज का ये इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की अप्रोच थी और इससे ये पता लगता है कि जर्नलिज्म में भी उनकी अप्रोच क्या है। वो वही मसले हमेशा उठाने में विश्वास रखते हैं अपेरेंटली, जो लोगों से जिनका वास्ता पड़ता है। तो मैं अधिक आज नहीं कहना चाहता क्योंकि हम सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ईगर हैं पुण्य कुसुम वाजपेयी जी को सुनने के लिए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ डीएमई की तरफ से, डीएमई मीडिया स्कूल की तरफ से, अपने सारे छात्र और अपने सारे शिक्षकों की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे जो गेस्ट हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप आज का जो ये बीजी वर्गीज लेक्चर है उसकी शुरुआत करें। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक ठाक? जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। फोन को भी घुमाना पड़ता है कई तरीके से, तब वो चेहरे को पकड़ पाता है। मीडिया को भी ऐसे ही घुमाना पड़ता है। बहरहाल 2-3 चीजें हमें लगता है कि तमाम हमारे पास लगभग 23 सवाल छात्रों के आए हैं, जिसमें कुछ छात्रों ने हम देख रहे हैं कि 2-3 सवाल किए हैं। तो कुल मिला के लगभग 19-20 स्टूडेंट्स हैं जिनके सवाल हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे पहले एक बेसिक लकीर मीडिया को लेकर खींच लेनी चाहिए, और वो बेसिक लकीर ये है कि खास तौर से मौजूदा वक्त में जब हम लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं, उनके जहन में 2-3 बातें साफ होनी चाहिए जो हमें लगता है कि इस दौर में साफ नहीं है। पहली बात तो यह है कि मीडिया को हम लोग लगातार डिफाइन जब करते हैं तो एज ए फोर्थ स्टेट करते हैं। फोर्थ स्टेट का मतलब बहुत साफ तौर पर होता है कि डेमोक्रेसी को लेकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन दी गई, उसमें कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, यानी सरकार भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जुडिशरी यानी जजेस भी हैं, और पैरेलल में मीडिया को खड़ा किया गया। और मीडिया की महत्ता ये थी कि मीडिया चूंकि टैक्स पेयर के पैसे पर नहीं चलता है, मीडिया उस मार्केट पे चलता है जिस मार्केट में लोग तय करते हैं कि इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और यही आपकी क्रेडिबिलिटी होती थी। और यही माना जाता था कि मीडिया पर्सन जो होगा, जब भी वह कुछ रिपोर्ट फाइल करेगा या राइटिंग में लिखेगा या न्यूज़पेपर में कुछ लिखेगा, मैगजीन में लिखेगा, तो वह कहीं ना कहीं जनता और सत्ता के बीच में एक ऐसे पुल का काम करेगा जिसमें जनता के एस्पिरेशंस को वो समझ लेता है और सरकार की पॉलिसीज को डिफाइन इस रूप में करना चाहता है कि जिससे आप जनता के हित में रहें। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी शायद किसी भी स्टेट में तभी जिंदा रह सकती है जब मीडिया स्वतंत्र हो, और मीडिया को उस तरीके से फोर्थ स्टेट के तौर पर मान्यता हो। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, फोर्थ स्टेट तभी होगा जब फर्स्ट स्टेट होगा, और फर्स्ट स्टेट का मतलब यहां से फर्स्ट स्टेट से भी पहले की स्थिति है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यह भी एक स्थिति आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस रूप में वर्क कर रहा होगा, खास तौर से जब हम लोग वी द पीपुल का जिक्र करते हैं, उसकी बात भी होगी। और तीसरी स्थिति यह है कि मीडिया कोई दूसरे बिजनेस की तरह नहीं है जिसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और मीडिया में माना यह जाता है कि कंटेंट मैटर करता है, आपकी काबिलियत मैटर करती है, आपकी समझ मैटर करती है, आपका ज्ञान मैटर करता है। लेकिन धीरे धीरे बीते 70 बरस में हम लोग चीजों को डिफाइन करते करते एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां पर मीडिया को अपने आप से संघर्ष करना पड़ रहा है।
और इस संघर्ष का मतलब बहुत साफ है कि मीडिया है या नहीं है, या मीडिया सिर्फ एक बक्से की तरह है, जो एक इडियट बॉक्स, जब टेलीविजन इजाद हुआ तो इडियट बॉक्स उसको कहा गया। लेकिन इडियट बॉक्स की भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारी स्थिति बिल्कुल अलग हो गई, यानी मीडिया की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि डेफिनेशन जो थी वह फोर्थ स्टेट से हटकर एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन पर आ गई। हर मीडिया हाउस एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे मीडिया कॉस्टली हो गया। अगर आप 50s नेहरू के दौर में जाइएगा, या इंदिरा गांधी के दौर तक भी आइएगा, या राजीव गांधी तक भी आ जाइए, या फिर मंडल कमंडल तक भी आ जाइए, डेट मीन्स 1989, 90, 91, 92 तक भी आ जाइए, आप लोग ध्यान देंगे कि उस वक्त टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन के तौर की एंट्री हुई थी, लेकिन जो लिखा जा रहा था वो, अगर आपके भीतर एक इच्छा हो कि हम एक लघु पत्रिका निकालें, हम एक छोटा अखबार निकालें, हम एक इवनिंगर निकालें, तो बहुत खर्चे नहीं आते थे। और जो न्यूज प्रिंट होता था वो गवर्नमेंट देती थी। जो हम लोग कहते हैं कि दो तरह के मीडिया होते हैं, एक जैसे मौजूदा वक्त में न्यूज चैनल का मीडिया, एक सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया में आपकी एंट्री हो सकती है, उसमें गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से लगभग 90 के दशक तक भारत में जो अखबार भी निकालना चाहते थे, उनको जो न्यूज प्रिंट मिलता था बड़ा सस्ते में मिलता था, वो गवर्नमेंट देती थी, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुए होते थे, जिनको विज्ञापन मिलता था, जिनको सरकार के जरिए न्यूज प्रिंट। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे 1991 के बाद से जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने पूरा बाजार खोल दिया। तो बाजार खुलेगा तो सिर्फ परचून की दुकान तो बदलेगी नहीं, और कॉर्पोरेट तो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो मीडिया भी बदलेगा। तो मीडिया धीरे धीरे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होने लगा जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने हमारे आने लगा। यानी आज की तारीख में अगर आपको कोई न्यूज चैनल निकालना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस अगर आप सन 2000 में लेते तो आपकी नेटवर्थ जो है वह सिर्फ 1.25 करोड़ होनी चाहिए थी, टोटल नेटवर्थ जो आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं। आज की तारीख में नेटवर्थ 20 करोड़ होनी चाहिए, ये पहला रिस्ट्रिक्शन है। तो 20 करोड़ नेटवर्थ किसी जर्नलिस्ट के पास कैसे होगी? तो निकालेगा तो कोई बिजनेस पर्सन ही साथ में खड़ा होगा, कोई कॉर्पोरेट ही साथ में खड़ा होगा। दूसरी स्थिति आ गई कि मीडिया धीरे 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 धीरे, भारत की राजनीति ने कमाल का काम ये किया कि उसने अपने लिए सारी चीजें डिफाइन करनी शुरू कर दी। तो उसने मीडिया को भी डिफाइन करना शुरू कर दिया। हम लोग पहले बात सुनते थे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स में करप्शन हो रहा है, हम लोग ये लोग चीजों को, बातों को सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के भीतर ही जैसे लगभग 543 में से 282 पार्लियामेंट्रीज के ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। और पार्लियामेंट के 543 जो लोकसभा के सदस्य हैं, 543 सदस्यों में से आप कल्पना कीजिए कि 512 सांसद करोड़पति हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल और इस देश की जनता की लाइफ स्टाइल वेरी कर गई। उनकी जरूरतें, जनता की जरूरतें वेरी कर गई। उनके जिंदगी जीने के तौर तरीके और जनता के तौर तरीके दोनों वेरी कर गए। वहां क्रिमिनल भी बैठे हैं, वहां रईस भी बैठे हैं। और भारत की जनता मौजूदा वक्त में, हमारे यहाँ हर तीसरा व्यक्ति जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वह उस इलेक्शन पे आकर टिक गई, जिस इलेक्शन को में एक वोट डालने को ही डेमोक्रेसी मान लिया गया। लेकिन उस डेमोक्रेसी में हमारे सामने जब ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे सबसे ताजा उदाहरण आप लोग को देते हैं बिहार का इलेक्शन। बिहार के इलेक्शन में इस वक्त जो 243 एमएलए चुने गए, एक बात, जिन्होंने चुनाव लड़ा उनकी तादाद, जो चुनाव लड़ने वाले थे तकरीबन 3,500 लोगों ने चुनाव लड़ा 243 सीट के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से ज्यादा क्रिमिनल होंगे, जिन पे क्रिमिनल का मतलब क्रिमिनल केसेस चल रहे होंगे, उसको हम लोग रेड अलर्ट में रखेंगे। अब आप सोचिए कि 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से
कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जो कि रेड अलर्ट के दायरे में आएगी, जहां पर 3 से ज्यादा क्रिमिनल आरोपित चुनाव लड़ रहे होंगे। 243 में से 196 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां पर 3 से ज्यादा ऐसे लोग खड़े थे जो कि अपराधी छवि के हैं। किसी पर रेप का चार्ज है, किसी पर मर्डर का चार्ज है, किसी पे हत्या का आरोप है, किसी पे फिरौती मांगने का है, कोई डकैती के आरोप में फंसा हुआ, ये सब चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बात शुरू हुई कि जो करोड़पति थे वो सारे करोड़पति क्या क्रिमिनल नहीं थे। पता चला जो सारे क्रिमिनल थे वो सारे करोड़पति थे। यानी अपराध है तो पैसा भी है। यह भारतीय समाज का एक लोकतंत्र को जीने का एक नया अनूठा सच हम लोग के सामने आ गया। अब इस प्रोसेस में आप आगे चलिए। 2014 में नई सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। प्राइम मिनिस्टर ने आते ही कहा, और उससे ठीक पहले, जरा सा कुछ पहले चले जाइएगा तो इस देश में एक मूवमेंट हो रहा था, अन्ना आंदोलन, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आ गए, केजरीवाल आ गए। उसमें क्या आंदोलन था? वो लोकपाल को लेकर आंदोलन था, जन लोकपाल। जन लोकपाल का मतलब क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो कि करप्शन के दायरे में आए हुए मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी स्क्रूटनी कर सकता है, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसने उफान पैदा किया, इस देश की जनता ने साथ दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गए। लेकिन इस देश के किसी भी राज्य में लोकपाल वैसा नहीं है जिसके लिए आंदोलन हुआ था, दिल्ली में भी नहीं है, लेकिन उसी आधार पर चुन के आए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, 2014 प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनते ही कहा कि भाई जिनके खिलाफ भी दागी केसेस चल रहे हैं, ये हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, जुलाई 2014 में सेंट्रल हॉल में प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया और बताया कि जितने भी क्रिमिनल केसेस जिन पर चल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को हटा दे। और जिन पे हटा दे का मतलब है वो जाएं, ट्रायल चलेगा, फास्ट ट्रैक चलेगा और उसको खत्म करें और फिर आए। 2014 से 2019 आ गया। पता चला 2019 में 2014 से ज्यादा बड़ी तादाद में क्रिमिनल वाले एमपीज बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये दो चीजें क्लियर हो गई कि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। तीसरी स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिमिनल लोगों को खड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी के 4th पिलर के तौर पर डेमोक्रेसी के मतलब को मान रहे हैं इलेक्शन ही फिलहाल। लेकिन बिहार का इलेक्शन आया तो एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तमाम कच्चे चिट्ठे जो इलेक्शन कमीशन में तमाम चुनाव लड़ने से पहले आपको अपने बारे में जानकारी देनी होती है, उस जानकारी में जब सभी ने बताया कितनी बड़ी तादाद में क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ही सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के थे, तो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और पार्लियामेंट में शामिल बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी के उम्मीदवार अपराधी थे। इसका एक मतलब ये शुरू, अब यहां से बात शुरू होती है कि जर्नलिज्म को 4th स्टेट माना जाए या ना माना जाए, और इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनली एक कानून के राज देखा जाए कि ना देखा जाए। हमें लगता है हम लोग को तो पूरी ट्रेनिंग है डेमोक्रेसी को जीने की, क्योंकि लैंड ऑफ गांधी है हम लोग तो, और चीजों को समझते हैं इस रूप में। तो जर्नलिज्म का पहला ऑब्स्ट्रक्शन जो आता है हमारे सामने, हम जो काम कर रहे हैं उस काम की महत्ता सरकार के सामने कुछ भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उस काम की महत्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ भी नहीं है, और इस देश के इंस्टीट्यूशंस के सामने भी जर्नलिस्टों की कोई महत्ता नहीं बची, इंस्टीट्यूशंस की कोई महत्ता नहीं बची, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली थे, जो संवैधानिक स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें सीवीसी आता है, जिसमें सीबीआई आती है, जिसमें सीएजी आता है, जिसमें सीबीआई भी आती है, जिसमें ईडी भी आती है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार द्वारा नहीं चलने चाहिए, इनको अपने रेपुटली काम करना चाहिए, लेकिन हमें काम तो करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा काम, अपना काम सरकार के लिए नहीं जनता के लिए हो जाएगा। झटके में हम शिफ्ट करेंगे। कल तक क्या था? कल तक था कि हम जनता की भावना, उसकी जरूरतों को समझकर रिपोर्ट फाइल करते थे, और उस रिपोर्ट को सरकार पढ़ती थी, और सरकार पढ़ने के बाद सोचती थी कि जनता ऐसा सोच रही है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो उस
रिपोर्टर या उस मीडिया इंस्टीट्यूशन की साख बढ़ जाती थी कि उसकी बात को सरकार ने मान लिया। अब सवाल यह है कि जब इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर कंट्राडिक्शंस आ गए हैं, जब गवर्नमेंट अपने तौर पर मानकर चल रही है कि उसको तो किसी भी हालत में अपने आप को बनाए रखना है, इसीलिए लहजे में काम, तो मीडिया करेगा क्या? और मीडिया इस दौर में इतना कॉस्टली हो गया कि मीडिया अपने आप में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया जहां पे उसके पास एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल की जरूरत है जिसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप न्यूज चैनल निकाल रहे हैं तो आपके पास 100 करोड़ होने चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं तो आपके पास कम से कम 25 करोड़ होने चाहिए। अगर आप कोई मैगजीन निकाल रहे हैं तो आपके पास 10 करोड़ होने चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में अपनी एक साइट बना रहे हैं तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब जब होने चाहिए इतने पैसे, तो इतने पैसे कोई कहां से लाएगा? और जहां से भी लाएगा उसको लौटाएगा भी। तो यह एक बिजनेस मॉडल काम करने लगा, और इस बिजनेस मॉडल को, ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा वक्त की है, बिजनेस मॉडल काफी दिनों से काम कर रहा है। इससे पहले मनमोहन सिंह थे, उस दौर में भी काम कर रहा था ये बिजनेस मॉडल। लेकिन मौजूदा वक्त में एक नायाब चीज क्या हो गई, इस बिजनेस मॉडल में मीडिया हाउस ही नहीं बल्कि इस देश के कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस पर्संस और इंस्टीट्यूशंस, सभी को लाभ तभी मिलेगा जब वो सत्ता के लिए काम करेगा, तभी आपको बिजनेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आपके सामने नई परेशानी आ गई कि हम न्यूज चैनल चलाएं, न्यूज चैनल चलाते हुए जनता के लिए काम करना शुरू कर दें, या हम अपने बिजनेस को देखें। क्योंकि भारत में बीबीसी सरीखा एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, जहां पर बीबीसी के पीछे क्या है, या चैनल 4 एक दुनिया का नामी चैनल है, उसके पीछे क्या है, जनता पैसा देती है, वो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, तो वो टैक्स पेयर के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमारे यहाँ क्या है, टैक्स पेयर के पैसे से सरकारें चलती हैं, और सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर को लेकर नहीं होती है। यह भी स्थिति हमारे सामने है। तो ये जब पूरे देश की परिस्थिति आप जब समझते हैं और समझने लगेंगे, तब आपके सामने चैलेंजेस शुरू होंगे। ये चैलेंजेस जर्नलिज्म को करने के हैं, ये चैलेंजेस बिजनेस मॉडल को सरकार के लिए कैसे अनुकूल काम करना और चेक एंड बैलेंस बनाना है, इसको लेकर भी होंगे। कुछ मीडिया इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनकार नहीं है, वो उनके पास क्या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या प्रॉफिट आते आते मुश्किल हो रही है, क्या मुश्किल हो रही है, लेकिन प्रॉफिट तो आ रहा होगा, तो उनके पास प्रॉफिट का रेंज बहुत छोटा होगा। और जो सरकार के साथ होंगे उसमें सरकार का एड खूब होगा। जैसे जिस भी छात्र या टीचर ने आज के दिन देखा इंडियन एक्सप्रेस में इतना बड़ा एड कभी नहीं आया। हमने आज जानकारी हासिल की, 3 पन्ने का एड है जो कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। इतना बड़ा एड कभी नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, जी आपके हाथ में और हमारे सामने भी है, और इसी तरीके से जिस समय हाथरस कांड हुआ था और तमाम मीडिया हाउस जब कवर कर रहे थे, उस पीरियड को अगर आप देखिएगा, उस पीरियड में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और हाथरस भी उत्तर प्रदेश में, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का विज्ञापन जो था वो 2.5 मिनट का विज्ञापन था। इतना बड़ा एड इलेक्शन से हटकर कभी किसी ने नहीं बनाया जो उत्तर प्रदेश ने बना दिया। यानी उस चैनल में बैठा हुआ एंकर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, और हाथरस में रेप हो गया, जला दिया गया, सब चीजें फेल है। और जैसे ही वो न्यूज चलने के बाद खत्म होती है, एक ऐड आता है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, योगी सरकार जबरदस्त है, तो उसका भी पैसा आया चैनल के पास। ये कंट्रडिक्शंस हैं। हमारा काम इन कंट्रडिक्शंस को समझना है, और जिस दिन आप इस कंट्रडिक्शंस को समझ लेंगे तो आपके पास एक वोकैबुलरी आ जाएगी। जैसे किसी बच्चे को हम लोग ए से लेकर जेड तक सिखलाते हैं, तो उसके बाद उसको बोलते हैं कोई वर्ड बनाओ, तब वो वर्ड बनाता है। शुरुआत में सिर्फ वो 2 वर्ड जोड़ता है, TO2, फिर 3 वर्ड बोलेगा, THED। इसी तरीके से हिंदी में भी होता है। जर्नलिज्म का मापदंड यही है कि अगर आप इस स्टेट की पॉलिटिक्स को समझ गए, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे राजनीति ही सिस्टम को डिफाइन करती है।
राजनीति ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिक्स डिफाइन करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जुडिशरी को भी प्रभावित कर रही है। और खास तौर से इस दौर में ही हमने देखा, इससे पहले इतिहास टटोलिएगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा, एक तो किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा कि कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऊपर में सबसे बैठा हुआ शख्स पार्लियामेंट में पहुंच जाए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए भी कम से कम 1 से 2 साल का ब्यूरोक्रेट्स भी समय लेते हैं कि हमने सरकार के लिए अच्छा काम किया है, संसद में सरकार हमको भेज देगी तो 1 साल तो लगा दो। लेकिन भारत, और इससे पहले कभी कोई चीफ जस्टिस भी नहीं मिलेगा, इससे पहले का जो चीफ जस्टिस मिलेंगे वही 11 साल के बाद गए थे पार्लियामेंट में। मौजूदा वक्त में सिर्फ रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद चीफ जस्टिस गगोई पार्लियामेंट में चले गए, उसी पार्लियामेंट में चले गए जिस पार्लियामेंट को लेकर कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दरअसल 3rd चेंबर ऑफ करप्शन हो गया है। ये एक नया कंट्रडिक्शन है, यानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप जर्नलिज्म करते हुए आंख बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो स्टूडेंट्स अब जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ यह सोचते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली और हम जर्नलिज्म में आ गए, तो आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे जिसमें आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आप 10 to 5 टाइप किसी बाबू की तरह काम करते हैं, और जो चीज आता है, कोई डेस्क पे काम करता होगा तो कॉपी सुधार देगा, कोई रिपोर्ट फाइल करने जाएगा तो उसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता होगी उसकी प्रेस रिलीज को छाप देगा, जो वो कहेगा उसी को दिखा देंगे। यानी उसके रास्ता ताल्लुकात जनता से नहीं होंगे, वह क्रिटिकल नहीं होगा, उसके भीतर कोई सवाल नहीं होंगे, और वह इस बात का एनालिसिस नहीं कर पाएगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है और जनता जो सोच रही है उसके बीच में वो खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है। हम लोग बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो कह रही है उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की दिशा में बढ़ जाते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर हम अभी के दौर में आ जाते हैं। अभी के दौर में क्या है, बहुत कम लोग जानते होंगे या आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे, सीएजी की ही रिपोर्ट थी जिसने इस देश में 2G स्पेक्ट्रम को उठाया था। सीजे की ही रिपोर्ट थी जिसने कोयला ब्लॉक्स जो बांटे गए थे उसको उठाया था। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सीएजी की ही रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि इस देश के भीतर में जो 40% शौचालय ग्रामीण इलाकों में बने उसका कोई मतलब ही नहीं था। इस देश के भीतर में जो पैसा डाइवर्ट किया गया है प्रचार के लिए, वह कितना वेस्ट किया गया, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? सीएजी ने तो अपना काम अपनी जगह रिपोर्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक दबाव बना हुआ है कि हमारे खिलाफ कुछ भी चीजें आएंगी आप उसको नहीं दिखाएंगे और सारी चीज पॉजिटिव ही बताएंगे। तो जब सारी चीजें गवर्नमेंट के पॉजिटिव ही आ रही है और आपका बिजनेस मॉडल और जिस जगह आप काम करते हैं वहां का बिजनेस मॉडल भी ये कहता है कि आपको तो पैसे कमाने हैं और आपको इंस्टीट्यूशन को चलाना है, लेकिन यह कोई नहीं सोच पाता है कि इस बड़े से तालाब में, गंदे तालाब के भीतर भी अगर एक भी बुलबुला उठेगा तो सबकी नजर उस बुलबुले पर जाएगी। जर्नलिज्म यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का एक असल चेहरा ये भी है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। आप एक 5 साल में हड़प लेंगे इलेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं चोरी कर लिया गया है। इसका आरोप इंदिरा गांधी पे भी लगता था, आज संयोग से इंदिरा गांधी जी की जयंती भी है, लेकिन इसका आरोप आज भी लगता है। दोनों में अंतर क्या आ गया? दोनों में एक और अंतर है। इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे और नेक्स्ट डे राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया था कि इमरजेंसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिले गए आपके ये अधिकार, उसमें मौलिक अधिकार भी है, अब वो खत्म हो गए, सस्पेंड हो गए। लेकिन मौजूदा वक्त में ना तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, ना कोई इमरजेंसी लगी है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं बचा है। अब ये मौलिक अधिकार क्या होता है? प्रवासी मजदूरों से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का हाल आपने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इसका दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हुए स्टेट को, यानी मोदी गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह निर्देश दे सकता है कि इस तरीके से जो लोग घर लौट रहे हैं इनके लिए आप व्यवस्था कीजिए। किसी की जान नहीं जानी चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, और नागरिक की अपनी जरूरतें भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, इनकी पूर्ति कीजिए, नहीं तो आपको नोटिस भेज रहे हैं। ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, नहीं किया उसने।
किसी को नोटिस नहीं भेजा। कॉन्स्टिट्यूशन में जबकि दर्ज है तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कर दी कि देखिए बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है और इस वक्त हम लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, इस रूप में करेंगे। उसमें फिर से याद कीजिए, उन्होंने कहा था 18 दिन के भीतर में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो हम 18 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन। क्या किसी ने नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट 18 दिन के बाद आज की स्थिति में 7 महीने हो गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और दिल्ली की स्थिति तो हम लोग देख रहे हैं और नाजुक हो गई है। क्या इस दौर में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? अब मीडिया का काम यहीं से शुरू होता है और लड़ाई यहीं से शुरू होती है। जरा इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपके सवालों पर आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन कीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन नहीं करेंगे। कल मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस समय क्यों कर दिया था? आपके पास भी बहुत सारे पैसे बचे हुए होते हैं, तो आप सोचते हैं यार लॉकडाउन है, चलो कुछ पैसे से काम चल जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए ये लॉकडाउन लंबा चला गया, तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना पैसा उसके पास होगा? एक वक्त का खत्म हो जाएगा, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो उसको फिर से पैसा चाहिए होगा। तो याद कीजिए, जिस समय दिल्ली में शराब की दुकानें खुली, क्यों खुली? क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू ही नहीं था, पैसा ही नहीं था। अब रेवेन्यू आप सोचेंगे सरकार को क्यों जरूरत है? अरे भाई, तो सरकार को इसलिए जरूरत है क्योंकि जो कर्मचारी है उनको वेतन भी तो देना है। वेतन तक देने का पैसा दिल्ली सरकार के पास उस लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली खत्म हो गया था। यूनिवर्सिटीज में पैसे नहीं दिए पा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई 4 कॉलेजेस जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जो हॉस्पिटल चलते हैं मातहत, वहां पर मुश्किल आ गई तो उन्होंने खोल दिया मार्केट। अब मार्केट जब खोल दिया तो अब नई स्थिति आ गई कि स्थिति विकट हो रही, तो बोले नहीं बंद नहीं करेंगे क्योंकि रेवेन्यू तो चाहिए। लेकिन स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। अगर आज की स्थिति में स्कूल कॉलेज खुल रहे होते तो हम आपके साथ होते, हम लोग वर्चुअल पे हैं। अब आप सोचिए, एक डेवलप स्टेट में आपको लिए चलते हैं, ब्रिटेन में। लंदन में बुरी हालत हो गई है, लॉकडाउन हो गया है, 4 हफ्ते का लॉकडाउन। वहां के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने ऐलान किया कि अब लॉकडाउन कर रहे हैं। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी, इस लॉकडाउन को इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने देखा मॉल में लोग भरे पड़े हैं, पब्स में भरे हुए हैं, खूब यारी मस्ती हो रही है, तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। सारी व्यापारिक गतिविधियां रोक दी, लेकिन स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और खास तौर से बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। उन्होंने बोला कि हम स्कूल को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। घंटे घंटे भी डाइवर्ट किए गए कि 1 घंटे ही पढ़ाई होगा, क्योंकि बच्चों की जो मानसिक और शारीरिक विकास की स्थिति होती है वो स्कूल में ही हो सकती है, और हमारा मानना है कॉलेज में भी होती है। तो इसको डेवलप कंट्रीज समझते हैं। डेवलप कंट्रीज उस बिजनेस मॉडल को नहीं देख रहे हैं जिसमें पैसा चाहिए। उन्होंने अल्टरनेटिव व्यवस्था की हुई है अपने यहाँ, तभी वो डेवलप है। हमारी स्थिति डेवलपिंग में भी नीचे आ गए हम लोग, क्योंकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भी चीजें डेवलप हमसे कॉम्पिटिटिवली बेटर कर ली। इसका मतलब है कि जर्नलिस्टों के सामने ये विजन मल्टी डायमेंशनल तरीके से क्रिएट करना होगा। एपिडेमिक जो है ये वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अगर हम इस महामारी की रिपोर्टिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ यह देखेंगे कि दिल्ली और मुंबई और कर्नाटक में क्या हो रहा है, या बेंगलोर में क्या हो रहा है, या बिहार में कुछ नहीं हुआ और यूपी में नहीं हुआ, फिर अगली रिपोर्ट फाइल करेंगे कि वहां पर टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, फिर अगली रिपोर्टिंग करेंगे टेस्ट के बाद हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका जब कैनवास आप बड़ा करना शुरू करेंगे तो आपके जहन में तुरंत ये बात आएगी कि ये बीमारी तो वर्ल्ड वाइड है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, उसने पैसा भी भारत सरकार को भी दिया है। उस पैसे का क्या उपयोग हुआ? वो पैसा मैक्सिमम जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है स्कूल कॉलेजों के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए। उस पैसे के उपयोग से आपको ये नहीं करना है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग ठीक करा रहे हैं। वो तो मान के चल रहा है आपके यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग ठीक है, बेड्स आपके यहाँ ठीक है, ऑक्सीजन आपके यहाँ उपलब्ध है, मान के चल रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी बेसिक नहीं था। तो इस दौर ने बता दिया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गायब है, तो हमको रिपोर्टिंग उस पर भी करनी थी, लेकिन हमने नहीं की। जर्नलिस्टों ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि फिर सरकार को मुश्किल होती। सरकार को मुश्किल होती तो सरकार क्या करती? सरकार आपके उस प्रॉफिट के रास्ते को बंद करती। एडवर्टाइजर्स में जो एडवर्टाइज करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स जो भी विज्ञापन देते हैं, उन पर रोक लगा देती। यह एक स्ट्रक्चर है ओवरऑल जर्नलिज्म का, जिसके
तमाम स्थितियों को अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके भीतर इतने सवाल होंगे कि उन सवालों को लोगों को बताने के लिए सवाल ही बता सकते हैं हम लोग कोई पुलिस थाना खोल के नहीं बैठे हैं कि जवाब खोजने निकल जाए और बताने लगे ये जवाब है। हम तो सवाल ही बताएंगे, तभी फोर्थ स्टेट थे और तभी फोर्थ स्टेट बचे रहेंगे, क्योंकि हम सवाल करते हैं। और याद कीजिए, अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में सुधार करना, अमेंडमेंट्स लाना, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जर्नलिज्म करते हुए किसी भी फील्ड को जब हम कर रहे हैं तो पढ़ाई हमारी जो होती है वह उस फील्ड को लेकर, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का दौर है। स्पेशलाइजेशन के दौर में जो लड़कियां मान लीजिए सोचती होंगी कि हम तो, या कोई जो लड़के सोचते होंगे हम तो महिलाओं के अधिकारों पर रिपोर्टिंग करेंगे, तो भाई उनको पता होना चाहिए ना कि निर्भया फंड 2018 में 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। कल्पना के परे है, ये भारत में ही हो सकता है। जिस निर्भया को लेकर इस देश की राजनीति में उबाल आ गया, सत्ता पलट गई, उस निर्भया फंड का उपयोग 2000, उससे पहले कभी 10% हुआ, कभी 20% खर्च हुआ, बाकी उपयोग नहीं हो पा रहा था। निर्भया फंड के मार्फत अलग अलग जगहों पर फास्ट ट्रैक चलने थे, वो चल नहीं पा रहे थे। ये सारी चीजें हो रही है, चल रही है। लेकिन 2018 एक ऐसा साल आया जिसमें निर्भया फंड का बजट जो दिया गया उसमें 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। कितने लूपहोल्स हैं। तो हम लोग जब जानकारी हासिल अपने तौर पर करेंगे, क्योंकि मीडिया में काम करने का मतलब 2 तरफा होता है। एक, हम लोग जो किताबों के जरिए जानकारी हासिल करते हैं वह हर कोई जानकारी हासिल करता है, लेकिन किताबों में डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम जब सड़क पर जाते हैं तो हमारी आंखें कुछ खोज रही होती है, हमारा दिमाग कुछ चाहता है। उससे जब हम इंटरेक्शन लोगों से करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आने लगते हैं। तब हम सोचते हैं कि अच्छा, निर्भया तो हो गया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली में तो और ज्यादा रेप बढ़ गए। इसका मतलब है कि पूरा फ्रॉड मामला था कि हम सीसीटीवी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या फिर जो बजट रखा गया उसमें जो 100 करोड़ रुपए दिए गए निर्भया फंड के, उसके मार्फत ये XYZ काम करना था, ये भी खत्म हो गया। इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे सामने चैलेंजेस, मेरे ख्याल से किसी भी जर्नलिस्ट के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस ये होते हैं कि वह मल्टीपल तरीके से एक वक्त में किसी एक इशू को लेकर सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। अगर वो सोच सकता है तो फिर वो काम उसी रूप में करेगा, और नहीं सोच सकता है तो फिर वो नहीं काम कर पाएगा। बताइए, क्वेश्चन शुरू करें? जी सर, जी जी। नंदनी मल्होत्रा जी, इसमें हम देख रहे हैं कि 3A नंदनी मल्होत्रा, इनका सवाल है मीडिया ट्रायल के बारे में। मीडिया ट्रायल दुनिया भर में होता है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन भारत के भीतर का सबसे बड़ा संकट ये है कि भारत के, हम इसको हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा बैठा के, मीडिया ही वह इंस्टीट्यूशन है जो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलता है। सारे इंस्टीट्यूशन टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। और मीडिया ट्रायल जब होता है तो किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? पुलिस को, पुलिस टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। जुडिशरी को, जुडिशरी टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। सुप्रीम कोर्ट भी टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसकी भी कोई अलग से कोई खाता नहीं खुला हुआ है। यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जगहों पर होते हैं सभी टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशंस अगर फेल हो रहे हैं तो फिर मीडिया के पास ऑप्शन नहीं है कुछ। मीडिया क्या करे? मीडिया, चाहे वह ट्रायल, जैसे सुशांत केस में आप देखिए, वो मीडिया ट्रायल बहुत ही, क्या बोलिएगा, वो बिल्कुल अनलॉजिकल था, उसके पीछे कोई दिमाग नहीं लगा हुआ था। लेकिन उसको महत्ता इसलिए मिल रही थी क्योंकि ना बिहार पुलिस कुछ कर रही थी, ना महाराष्ट्र पुलिस कुछ कर रही थी, ना सीबीआई। देखिए आज की तारीख में 159 डेज हो गए हैं सुशांत केस को आए हुए। क्या सीबीआई ने, क्या आपको नहीं पता है? नारकोटिक्स बीच में आ गई, उसने क्या किया किसी को नहीं पता है। तो मीडिया करे क्या? तो मीडिया ऐसे ऐसे रास्ते खोजता है जिससे आईबॉल्स उसको देखने लगे। आईबॉल्स मतलब आपका ध्यान सिर्फ उसी न्यूज चैनल को देखे, आपका ध्यान सिर्फ उसी रिपोर्टर को देखे, तो वह कुछ हरकतें करेगा। इन हरकतों को आप सर्कस भी कह सकते हैं, इन हरकतों को आप सीरियसली लेंगे तो आप कहेंगे मीडिया ट्रायल है। हम इसे सर्कस भी मानते हैं, कभी कभी ये सर्कस हो रहा होता है और हम लोग की इच्छा होती है कि सर्कस को देख लें, तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल वर्ल्ड वाइड होता है।
टीआरपी कंट्रोवर्सी निधि सहाय 5A, निधि सहाय का है टीआरपी कंट्रोवर्सी एनबीए वर्सेस अदर चैनल्स। हमारे यहाँ के सबसे बड़े लैप्सेस यही है कि टीआरपी को बताने वाली जो संस्था है वह खुद कितनी ईमानदार है यह वो कभी नहीं बताती है। और टीआरपी में जब आप आगे हो जाते हैं तो आपको झटके में अपनी मार्केटिंग के रास्ते खुल जाते हैं कि आप बाजार में जाके बोलते हैं देखिए हमारी टीआरपी दूसरे नंबर पे, अब हमारा एड रेट बढ़ा दीजिए या हमारे ऐड को आप ज्यादा दीजिए, हमारे चैनल पे ले आइए, ऐड ले आइए, ये ले आइए। यानी हमारे यहाँ हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं। तो जब हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है और उसके पीछे कोई लॉ भी नहीं है, और लॉ तो दूर है, हम लोग खुद भी मानकर चलते हैं किसी भी रूप में ज्यादा पैसे मिल जाए। यानी इस देश के भीतर में बच्चे को जब पहला नौकरी मिलती है, अगर वो आईएएस आईपीएस हो जाता है तो घर वाले खुश होते हैं, अब ये कमा लेगा। यानी कमा लेगा का मतलब ये नहीं है कि वेतन मिल जाएगा, अब इसकी कमाई होगी ठीक ठाक। ये एक धारणा है, क्योंकि इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार चाहिए, उसमें लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कुछ लोगों को ही रोजगार मिलता है। लेकिन आपका जर्नलिस्टिक स्किल जब काम करना शुरू करेगा तो आप कहेंगे इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में दलित्स हैं, जितनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, जितनी बड़ी तादाद में ट्राइबल्स हैं, इनके भीतर में सिर्फ 0.2% ही नौकरी क्यों पा पाते हैं, जबकि इनकी संख्या तो ज्यादा है, लगभग 35% है, लेकिन 0.2% क्यों आ पाते हैं। दूसरा सवाल होगा ये हायर एजुकेशन तक 3% लोग ही क्यों पहुंच पाते हैं, इन तीनों में से दलित हो, एससी एसटी हो या माइनॉरिटीज हो, सिर्फ 3% ही क्यों पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ असमानता भी है, और हमारे यहाँ असमानता के साथ साथ गरीबी ऐसी है कि हम लोग साउथ अफ्रीकन के सबसे गरीब देशों से भी गरीब हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग जीते हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना नीचे है। तो टीआरपी एक ऐसी रेस है जिसमें पैसा कमाना है, और एनबीए को बनाया गया कि आप इसको रोकिए। तो एक थाना खुला है, थाने को बोला गया कि देखो आपको अपने इलाके में क्राइम नहीं होने देना है। वो थानेदार क्या करेगा, वो मैनेज करेगा, एक क्रिमिनल को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ देगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, तीसरे को छोड़ देगा, फिर कभी चौथे क्रिमिनल को ले आएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल से ही खेलेगा। वो एक आइडियल थिंकिंग में कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी टीआरपी इंस्टीट्यूशन से निकले लोग ही एनबीए चला रहे हैं। अब आप क्या करोगे। मेंबर्स जो हैं एनबीए के, उसमें रिपब्लिक के भी हैं, उसमें आज तक के भी लोग हैं, मैंने टीवी टुडे के भी है, उसमें इंडिया न्यूज चैनल के भी है, सभी के मिला के बनाया जाता है, उनका जो बोर्ड बनाया जाता है। तो अब आप सोचिए, चोरों की बारात का दूल्हा आप खोज रहे हैं उसमें कि सब चीजें ठीक हो जाए, ये कंट्रोवर्सी तो रहेगी जब तक आप हेल्दी इंस्टीट्यूशन इस देश के भीतर में क्रिएट नहीं करेंगे, और उसको क्रिएट करने के पीछे कोई लॉन्ग टर्म विजन अगर आपके पास नहीं होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ मीडिया एथिक्स और मीडिया ट्रायल्स है जो शिव धवन ने पूछा है। मेरे ख्याल से इन दोनों को जोड़ दीजिए। हम लोग एथिक्स का जिक्र बार बार इसीलिए थोड़ा सा असंभव सा लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही आप एथिक्स पे जाते हैं आप एक आइडियलिज्म पे जाते हैं, जैसे ही आइडियलिज्म पे जाते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं आप रूल ऑफ लॉ पर जाते हैं, जैसे ही रूल ऑफ लॉ पर जाते हैं वैसे ही आपके सामने सरकार आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या बोल रहे हो, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, खेल खत्म हो जाता है, चीजें ढह जाती है, और आपकी जरूरत है कि सरकार के साथ तो रहना है, और आपको चाहिए अपने न्यूज के चैनल के स्क्रीन पर कभी ये मंत्री चाहिए, कभी वो मंत्री चाहिए। हम यहाँ पर एक उदाहरण दे देते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में कभी नहीं चाहा कि कोई मंत्री आए। मंत्री फोन करते थे कि यार एक बार आप हमको अपने प्रोग्राम में बुला तो लीजिए, और बजट के समय खासतौर से दबाव होता था। हमको कई बार मौजूदा वक्त के जो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद वो फोन करते थे कि यार आपके प्रोग्राम में आने पर अच्छा लगता। हम बोले सर ये प्रोग्राम जो है जनता के लिए बनाते हैं और जनता इसे देखती है। तो जिस दौर में सबसे ज्यादा सुपरफिशियल काम हो रहा था उस वक्त भी हमने ऐसे प्रोग्राम बना के देखे, उसकी टीआरपी हाई रहती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टीआरपी सर्कस से नहीं बढ़ती है। हाँ, सर्कस ही सर्कस होने लगे तो उसमें से बेस्ट सर्कस लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस हो जाएंगे, चीजों को समझने लगेंगे, तो ये देश की जनता बेवकूफ नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्टर्स दौड़ाने पड़ते हैं, लगातार आपको फैक्ट्स फिगर लाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट बड़ी मेहनत का काम होता है, और मेहनत का काम हमको लगता है जर्नलिज्म में आए तो करना ही पड़ेगा। ये
एक जो गायक होता है उसको भी हर दिन रियाज करना पड़ता है। लता मंगेशकर ने तो कहा कि मैं 50 साल तक हर दिन रियाज करती थी, क्योंकि उसकी गायकी को एक शार्पनेस मिलती थी। मीडिया पर्सनैलिटी की भी यही बात होती है। अगर आप हर दिन चीजों से नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन झटके में चीजें आसान कर दी गई। और इसका बिजनेस मॉडल क्या कहता है, आप ये भी समझिए। जिस समय, अगर आप लोग को याद हो, खली नाम का एक व्यक्ति आया था स्क्रीन पर। खली का एक टेप सिर्फ 50 रुपए में मेरठ के बाजार में मिल गया था इस देश के टॉप मोस्ट न्यूज चैनल को। उसने उसको दिखा दिया। अब आप सोचिए, उसने 3 घंटे तक दिखाया। 3 घंटे में बहुत शानदार टीआरपी आ गई। तो 50 रुपए में 3 घंटे तक टीआरपी आ जाए, अगर उसकी एवज में हम मेहनत करना शुरू करेंगे तो कोई रिपोर्टर भेजना होगा। रिपोर्टर गाड़ी से जाएगा, उसमें कैमरा पर्सन होगा, वो वहां पर जाएगा, हो सकता है रुकना भी पड़े, रिपोर्ट फाइल करेगा, लेकर आएगा, हम उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उसके बाद एक उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, फिर ग्राफिक्स बनेगा। इन सारे के सारे का पैसा तो जुड़ रहा है ना, ऑफिस टू कॉस्ट तो आ रहा है ना। लेकिन यहाँ तो 50 रुपए का एक टेप लेकर आए, हमने डाला, चला दिया और टीआरपी मिल गई। तो इसका मतलब है कि किसी रिपोर्ट को दिखाने में कम पैसे भी मैटर करने लगे। तो सांप का 2 मुंह है, हम लोगों ने ये दौर भी देखा। स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है, वो दौर भी देखा हमने। और मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं कि एक शख्स आते हैं, स्क्रीन पर बोल के चले जाते हैं, लोग उसको दिखाते रहते हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। लेकिन उससे हटकर जरा कभी सोचिएगा, जो नहीं दिखा रहा होता है उसको क्यों लोग देख रहे होते हैं, और उसकी रेपुटेशन क्यों मार्केट में अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल इससे नहीं जुड़ा हुआ है। चैनलों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये समझिए अपने आप में। If you get a chance to interview the Prime Minister, what kind of question will you ask him? How will you make him aware about the present condition of the country? रोहित गुप्ता, 3B। ये सवाल ऐसा है जो किसी से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आपको जानकारी है कि बीते 6 बरस में इस देश के प्रधानमंत्री ने कितनी योजनाओं का ऐलान किया? कभी भी किसी भी बड़े आदमी का इंटरव्यू से जुड़े हुए कई सवाल हैं। कभी भी एक चीज दिमाग में रखिए, जिसका इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं, उस व्यक्ति की कौन सी नब्ज है जिसके बारे में ये पूरा देश जानना चाहता है, एक बात। दूसरी बात, वह कौन सी नब्ज है जिसको आप जान चुके हैं और उसको पूरे देश को बताना है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में लगातार चलती रहनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के सामने तो हम लगभग 204 योजनाओं का उन्होंने बीते 6 साल में ऐलान किया है। हम उस योजनाओं की लिस्ट लेकर जाएंगे और हम कहेंगे आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप बताते चलिए। खाली पहली योजना डिजिटल इंडिया, क्या भारत डिजिटल हो गया? वो बोलेंगे हो गया जी। तो हमारी काबिलियत है हम उनको तुरंत बताएं कि नहीं हुआ है। इसी तरीके से जितनी भी इंडिया के नाम पर योजनाएं खोली गई, हम तो लिस्ट लेकर जाएंगे उनके सामने कि यही आपकी सफलता है। आप ही ने आपने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहा गांव गोद ले लीजिए। क्या आपको पता है मौजूदा वक्त में कितने सांसदों ने गोद लिया है? आप लोग को जान के हैरत होगी, जो 2019 जब आखिरी साल था तो 543 में से सिर्फ 23 सांसदों ने गांव गोद लिया था 5th टर्म में, 23। और इस बार एक भी व्यक्ति ने गोद नहीं लिया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर लाल किले से करें या कहीं से बात करें, उसका महत्व तभी होगा चीजें इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। हम लोग जैसे न्यूज टेलीविजन देखते हैं तो हर दिन एक नया एपिसोड देखते हैं। हमको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मत लीजिए, स्टेट को भी लेना शुरू कीजिए। महाराष्ट्र को भी ले आइए, उद्धव गवर्नमेंट को भी ले आइए, केजरीवाल गवर्नमेंट को भी ले आइए, ममता बनर्जी को भी ले आइए, और अब तो नीतीश कुमार को भी ले आइएगा। इसको आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी तो लव जिहाद पर आ गए हैं। और योगी सरकार, किसी को भी ले आइए, ये देखिए किसी एपिसोड की तरह सारी सरकारें चलती हैं। आज ये बोल दिया, कल उससे भूल गए, फिर कुछ नया एपिसोड ले आए, तो आप देखते रहते हैं। जैसे सीरियल्स में होता है, आज जहां पर सीरियल खत्म होता है कल कुछ नया आ जाता है, हम फिर आकर्षित हो जाते हैं, वाह मजा आ गया। तो सरकारें ऐसी है जो हमको मीडिया पर्सन्स को ज्ञान होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के सामने तो नब्ज जो होगी उस वक्त देखा जाएगा, उस समय कौन सी नब्ज है जो पकड़ी जाए, और उस एक नब्ज को पकड़ के ऐसा दबाना चाहिए जिससे समूचा सच सामने आ जाए। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण और देंगे। ओबामा की किताब आई है नई। ओबामा ने सिर्फ 4 पन्नों में पूरे भारत को डिफाइन कर दिया है, सिर्फ 4 पन्नों में। 700 पेज की किताब है, बड़ी मोटी किताब है। हमारे पास, हम दूसरे रूम में पड़ी हुई, हमारे पास हमने मंगाई, उसे पढ़ना शुरू किया। सिर्फ 4 पन्नों की किताब है
अब आप सोचिए, उस किताब को पढ़ते वक्त हम भी जो नहीं सोच पा रहे थे, उसमें मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं और दोनों डिनर पे बैठे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आना है, लेकिन डिस्कशन करते 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 वो पूछते हैं, फिर ऐसी बातचीत करने लगे तो वो बोलते हैं कि जो 2008 में जो अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान वाला अटैक हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आपने उतना एग्रेसिव रूप क्यों नहीं अपनाया। मनमोहन सिंह बोले नहीं अपनाया तो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं कहूं तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जैसे ही इस देश के भीतर में माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं, वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है जो कि एंटी मुस्लिम होकर इस देश के भीतर में जहर फैला देती। कुछ इस भाव में उन्होंने कहा है, जहर शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन एंटी मुस्लिम का भाव पूरे देश में पनपा देती है। और भारत के भीतर में 15% मुसलमान भी रहते हैं, जिनकी तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। हमको पूरे देश को देखना होगा, और हम जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमको पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। और बात बात में ओबामा कह गए, ये एक अच्छी बात थी कि मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे और इस देश के प्रधानमंत्री थे। उसी दौर में भारत ने ग्रोथ किया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है इस देश के भीतर में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो वो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, वो अपने वोट बैंक के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, वो इस देश के नहीं होते। कैसी स्थिति आ जाती है। तो बड़ा शानदार है, डिफाइन किया गया है उसको। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को लेकर इन बातों का जिक्र हो रहा था। एक है, ये हमसे मास्टर स्ट्रोक के बारे में पूछा गया, इस पे बहुत कह दिया गया, इसका जर्नलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, सरकार ने क्या किया नहीं किया, सब कोई मैटर नहीं करता है। इसमें एक क्वेश्चन है, मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस अल्टरनेटिव मीडिया, इट्स रोल एंड इम्पैक्ट इन द कंटेम्पोरेरी पीरियड। मुस्कान बवेजा ने 3C उसने सवाल किया है। अल्टरनेटिव मीडिया, ये सोच बहुत अच्छी है, और अल्टरनेटिव मीडिया को दबाने का काम सोशल मीडिया ने किया है। ये आपके लिए नई सोच हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया शायद अल्टरनेटिव मीडिया है। अल्टरनेटिव मीडिया अक्सर वो मीडिया होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा तय की गई नीति, पॉलिसी, सोच, विजन, पॉलिटिक्स, उसके काउंटर में जनता को लेकर चीजें खड़ा कर देता है, जो काम मीडिया का होता है। लेकिन जब मौजूदा वक्त में जब जनता की बात खड़ी नहीं करके सरकार सिर्फ अपना हित साधने के लिए काम कर रही हो, और मीडिया सिर्फ उसी के लिए काम करने लगा हो, जिसके अलग अलग नाम अलग अलग लोगों ने दिए हैं, कोई गोदी कहता है, कोई भूपू कहता है, कोई भक्ति कहता है, इन नामों पे मत जाइए, इसकी बेसिक लाइन को समझिए। अल्टरनेटिव मीडिया के लिए आपको जनता से जुड़ना होता है, और जनता से जुड़ते हुए हमारे सवाल जो होते हैं जनता के बीच और उनकी जरूरतों के साथ निकलते हैं। इसीलिए आप सोशल मीडिया में भी देखिएगा कि गवर्नमेंट द्वारा कही गई बातों को विरोध तो होता है, लेकिन वो अल्टरनेटिव नहीं है, विरोध हो रहा है। जब आप फैक्ट्स के साथ आते हैं, जब आप जद्दोजहद करते हैं, चीजों से जूझते हैं, तब आप अल्टरनेटिव ला पाते हैं। हम नहीं कह पाएंगे कि हम अल्टरनेटिव दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों को जानकारी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए फैक्ट्स के आधार पर करें, जिन फैक्ट्स को गवर्नमेंट छुपा भी लेती है। जैसे हमने आपको सीएजी की जानकारी दी थी कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या गड़बड़ी की है, उसको कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन हम उसको जब आपको बताएंगे तो एक लाइन होगी कि हमने विरोध किया, दूसरी लाइन होगी उसको जो इंप्लीमेंट जब जिन जिन गांवों में किया गया और वहां की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, तब ये अल्टरनेटिव दिशा में चले गए। तो हम लोग को अल्टरनेटिव जर्नलिज्म अक्सर अपने भीतर जिंदा रखना चाहिए, तभी हम जर्नलिज्म कर पाएंगे। इसमें है कि डिजिटलाइजेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द फेज ऑफ कोरोना, आयुषी वर्मा 3C। डिजिटलाइजेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये बिहार में हम लोगों ने देख लिया, और हमको लगता है इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज 2015 से ज्यादा हुआ, जिस वक्त कोरोना नहीं था, और बिहार के शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज 2015 से बहुत कम हुआ जब कोरोना था। मैसेज बहुत साफ है, गांव के लोगों की जिंदगी का जुड़ाव राजनीति से इस हद तक होता है जो पेट से जुड़ा हुआ होता है, तो वह भूल जाते हैं कि मौत कोरोना से आएगी या भूखे पेट आएगी, तो वह वोट डालने निकल जाते हैं। शहर में लोग पैसे वाले ज्यादा होते हैं, और उसमें भी हमको लगता है यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में कास्ट सिस्टम को भी समझना चाहिए। अपर कास्ट की मौजूदगी शहरों में ज्यादा है, इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम पटना का सबसे ज्यादा है, तो पटना में
बांकीपुर सीट जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लड़ रहे थे, सबसे कम वोटिंग पड़ी 34%। शहरी इलाका है, शहर के बीच का इलाका है, हम चूंकि पटना में रहे हुए हैं इसलिए जानते हैं, और वहां लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, लेकिन डर से कि कोरोना से मौत ना हो जाए, कोविड है, तो डेमोक्रेसी तो गई और डिजिटल भी चीज गई, क्योंकि बैलेट तौर पे भी नहीं दिया गया था, अपने उस रूप में भी वोटिंग नहीं की थी, कोई मैटर नहीं किया। यानी एक प्रक्रिया के बाद जो लोग सहूलियत की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए एक सिस्टम चाहिए। डेवलप स्टेट्स में जैसे बाइडेन को मैक्सिमम वोट्स किन माध्यमों से मिले, वह उन माध्यमों से मिले जो घर बैठ के ही वोट दे सकते थे। ट्रंप ने कहा नहीं उस माध्यम से मत दीजिए, आके दीजिए, लेकिन कैलिफोर्निया ने स्थिति बिल्कुल नाजुक कर दी, बता दिया कि घर से बैठकर देने वालों की तादाद संयोग ही है जो डिजिटल के दायरे में लाई गई है अभी तक, और आई है वो और कम है। लाई का मतलब तार बिछा दी गई है। तो हमारे यहाँ भी ये बड़ी दूर की गोटी है ये, लेकिन फिर भी एक थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन उस थिंकिंग प्रोसेस में एक बात बेसिक हमेशा जहन में रखिए कि पेट भरा हो देश का, तभी बात चलेगी, और पेट खाली होगा तो लोग इन बातों पे गौर नहीं करेंगे। आप डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, और गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसी है वो देश के सिर्फ 3 करोड़ लोगों पर ही इंप्लीमेंट होती है, और इसीलिए ये 3 करोड़ लोगों के पास इस देश का लगभग 60% संसाधन है। ये भी एक फैक्ट है। डाटा जर्नलिज्म, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस बहुत है, वर्ल्ड वाइड इसका इंपॉर्टेंस है। ये मितिशा गुलानी ने किया 5D, बहुत ज्यादा इसकी उपयोगिता है, और मेरे ख्याल से डाटा पे अगर आप काम कर रहे हैं, और खास तौर से अब तो रेलेवेंस इस बात का हो गया है कि आप घर बैठे डाटा के साथ उसको किस रूप में, इंटेलिजेंसिया के रूप में रख सकते हैं। डाटा इंटेलिजेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है, और आने वाले वक्त में जर्नलिज्म में चीजें और डेवलप होंगी, क्योंकि इसमें एक उदाहरण और लेना चाहिए। यहाँ पर बैंकों में फ्रॉड्स मैक्सिमम हो रहे हैं, और आप लोग को ये जानकारी जानकर हैरत होगी, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, उन सभी ने बैंकों के फ्रॉड पर काम करने के लिए जो पूरा डाटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस का काम शुरू किया है, उसको करना शुरू किया। और न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन टाइम्स हो या टेलीग्राफ लंदन से निकलने वाला अखबार हो, सभी जगहों पर उनकी मदद ली जाती है। और भारत के भीतर भी जो कुछ पेपर्स आए थे स्विस बैंक से निकलकर और पनामा के थे, उस पे भी डाटा इंटेलिजेंस ने काम किया था, जिसपे इंडियन एक्सप्रेस की रितु सरेन थी, और एक हम भूल रहे हैं एक साउथ इंडियन वैद्यनाथन थे। इन दोनों ने मिलकर उसी रूप में काम किया था। तो इसकी महत्ता बहुत है, इस पे आप लोग को जरूर सोचना चाहिए। और संयोग से ये हमारे बड़े रुचिकर का है, हम डाटा पे बहुत काम करते रहते हैं, इसलिए डाटा हमारे टिप्स पे रहते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री से जरूर पूछेंगे उनसे कि आपको पता है 7 RCR में कितने कमरे हैं वो नहीं जानते, या कितने तोते हैं या मोर है, ये भी पूछ देंगे तो पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, हमें पता है वैसे। हाउ वुड यू डिफाइन टुडेज रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ मीडिया? मैंने कहा ये मीडिया नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है, और बिजनेस के हिसाब से मीडिया। हम यहाँ पर एक दिमाग में रखिएगा, जो बहुसंख्य है, जिनकी संख्या ज्यादा, उस लिहाज से मीडिया करें। कुछ अच्छे भी हैं, इनकार नहीं है, लेकिन जब आप ओवरऑल कहते हैं तो जिनकी तादाद ज्यादा उनके बारे में कह रहे होते हैं। तो मौजूदा वक्त में भारत के भीतर में मीडिया की फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के तहत हो रही है, इससे हटकर कुछ भी नहीं हो रही है। वो इसी दिशा में काम करते हैं, इसी दिशा में चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एजेंडा सेटिंग बाय मीडिया, कौशिक दास 5A। हमको लगता है सवाल होना चाहिए था, एजेंडा सेटिंग बाय गवर्नमेंट फॉर मीडिया। इस देश के भीतर में मीडिया अगर मीडिया को गवर्नमेंट चला रही है तो एजेंडा सेट भी वो करती है। यह भी आपके लिए नई चीज हो सकती है कि आज शाम में चैनल पे 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे क्या बहस हो, यह भी पार्टी के हेडक्वार्टर का IT सेल बता देता है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है, उसमें वो संपादक का दिमाग नहीं चलता है कि आज इस पे डिस्कशन कर लो, बताया गया होता है जिस पे डिस्कशन कर लो। इसीलिए आप लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर परेशान हो जाते होंगे, क्यों इतना बोला जाता है। और अब कश्मीर पर शुरू हो गया कि कश्मीर में गुपकर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कोई मीडिया हाउस इस पे डिस्कशन करेगा जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पेज पर रिपोर्ट छाप दिया है कि गुपकर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करगिल में पॉलिटिकल जुड़ाव बीजेपी का है? कोई करेगा डिस्कशन क्या? इंतजार करते हैं शाम के वक्त का, देखते हैं करता है कि नहीं करता है।
तो एजेंडा सेटिंग बाय मीडिया ठीक नहीं है, एजेंडा सेटिंग बाय गवर्नमेंट फॉर मीडिया है ये। द राइज ऑफ गोदी मीडिया, हमको लगता है इन चीजों पे बेकार की डिस्कशन है, गोदी मीडिया, और इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम लोग जर्नलिज्म पे ही बात करें तो अच्छा है। अगर हम पीड़ित परिवार से बात करने जा रहे हैं जैसे हासरत, तो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स क्या होने चाहिए? यकीनन कुछ बेसिक प्रोफेशनल एथिक्स हैं जिसमें उस परिवार के किसी व्यक्ति को ना दिखाना होता है। उसमें खास तौर से इन बात का जिक्र होता है कि आप जो कहने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसको कहीं आप इमोशनली एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, जो चीजें मिस की संयोग से हम इस वक्त उस मेन स्ट्रीम में नहीं थे, लेकिन हम किसी रिपोर्टर को भेजते अगर, तो हम सबसे पहले हाथरस में जिस लड़की के साथ हुआ है उस परिवार के सोशल कंडीशंस को सामने रखते हैं। उस सोशल कंडीशंस को आप दो ही स्थिति में सामने रख सकते हैं। एक, उस घर की रसोई में झांकिए, क्या स्थिति आपको समझ में आ जाएगा, और उसके घर के भीतर जब शूट करना शुरू करेंगे वो चीजें रिफ्लेक्ट पहले ही कर देगी कि कितना गरीब परिवार है, और इस गरीब परिवार के भीतर की मुश्किलें इतनी हैं जिसकी लेकर कोई रुचि दिल्ली में बैठे हुए या बंबई में बैठे हुए या लखनऊ में बैठे हुए किसी शख्स को नहीं है। उन सब के लिए यह एक मनोरंजन है। और हाथरस का दर्द जो है जब हम बता रहे हैं, उसको हमको तुरंत रूल ऑफ लॉ से जोड़ना होगा। लॉ फेल्योर है, और रूल ऑफ लॉ जिस स्टेट में नहीं होगा वहां पर स्टेट फेल्योर है। हमको इन चीजों को जोड़ना चाहिए। एक तो सोशल कंडीशन इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि हम बार बार बोलते हैं भारत में असमानता बहुत है, उस चीजों को हमको उभारना चाहिए। उसके बाद हमको रूल ऑफ लॉ पे आना चाहिए। रूल ऑफ लॉ से गवर्नमेंट को जोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को जोड़ने के साथ वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जुड़ जाएंगे, वह उस दायरे में आ जाएंगे, और तब एक दबाव पड़ेगा जुडिशरी के ऊपर में कि अगर रूल ऑफ लॉ अगर वो लागू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। हम लोग चले गए दिखाने के लिए पीड़ा को, दर्द को, इसको दिखाइए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन कहीं एक विजन क्लियर होना चाहिए। कल कोई दूसरा हाथरस ना हो, इसके लिए तो दिमाग चलते रहना चाहिए। कैसे नहीं होगा और क्यों होगा? हम एक दूसरे हाथरस का इंतजार करने की दिशा में, रिपोर्टर भी बैठा होता है, कैमरामैन भी बैठा रहता है। कई कई बड़े चैनलों के रिपोर्टर कहते हैं काश मेरे सामने ऐसा हो गया होता, जैसे उसके सामने कोई रेप हो जाए, जैसे उसके सामने कोई डकैती हो जाए, कहीं विस्फोट हो जाए, कोई घटना घट जाए। मीडिया यानी उसको बेस्ट रिपोर्टिंग मानता है कि हम ऑन स्पॉट थे। अरे साहब, वो रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप उसके बाद भी जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग उसको सुनते वक्त और उसको देखते वक्त ये, या उसकी राइटिंग को पढ़ते वक्त ये महसूस करें कि आपने उस परिस्थिति को ना सिर्फ उकेर दिया, बल्कि उस परिस्थिति की स्थिति क्यों आ गई इसको भी आप लेकर आ गए सामने। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन यह ताकत जर्नलिज्म में ही होती है। ये ताकत साहित्यकारों में भी होती है। साहित्य भी इस तरीके से लिखा जाता है। एक दिमान में काम किया करते थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु साहित्यकार थे, लेकिन जब रघुवीर सहाय संपादक थे या कोई और संपादक थे, उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु से कहा कि आप हमारे लिए रिपोर्टिंग कीजिए। तो 1975 में एक बड़ी बाढ़ आई, पटना तक डूब गया। उसके बाद आज तक डूबा था पिछले दिनों ही, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट होने की वजह से डूबा था। पटना पूरा डूब गया। उस समय की रिपोर्टिंग जो उन्होंने लिखी, उसको राजकमल प्रकाशन ने किताब के तौर पर छापा। उसका नाम है ऋणजल धनजल। उसमें जो रिपोर्टिंग जब आप पढ़िएगा तो वो बता रहा है कैसे एक ही मुहाने पर एक कुत्ता भी रो रहा है और एक बच्चा भी रो रहा है। दोनों का दर्द एक सरीका है, और वो रात के अंधेरे का दर्द और सुबह पहली उबासी का दर्द, कमाल है वो। तो ये जर्नलिस्टों की खासियत होती है, याद वही किए जाते हैं। बाकी उस समय किसने क्या किया, बाढ़ आ रही है, पानी को हमने शूट कर लिया और पानी के बीच में आधे पांव खड़े हो गए हैं और बता रहे हैं पानी डूबा हुआ है, तो बड़ी बेवकूफी भरी बात है, क्योंकि उस पानी के जितने जर्म्स आपकी बॉडी में भी जा रहे हैं। आप ये खड़े होकर कभी नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी कितना दूषित है, और अब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम तो चंद मिनट के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन सोचिए गांव के गांव डूब गए हैं, उन पे क्या होगी। और अगर वो बीमार होंगे तो कोई इस इलाके में अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमको पूरा डिफाइन करना होगा, तब लोग इसके मर्म को समझ पाते हैं। ये है आपके भीतर का। एनीवे, न्यूज जर्नलिस्ट कोई बनता है और कोई चाहता है वो सीधा टेलीविजन पर काम करे, वो डेस्क पर काम करना ही नहीं चाहता, तो आप मेरे को ये बताइए कि डेस्क पर काम करना कितना जरूरी होता है। भावना सुखेजा, इसका फिर सवाल आ गया क्या? एनीवे, एक चीज तो दिमाग में रखिए, टेलीविजन में जब हम लोग बोलते हैं
तो एडिटेड बोलते हैं, और एडिटेड चीजें जो होती है वह हमारे माइंड में तुरंत चीजों को एडिट कर रही होती है, और उसके लिए हमारे पास राइटिंग होनी चाहिए, और राइटिंग हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास शब्द होंगे, और शब्द हमारे पास तभी होंगे जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लगातार इन चीजों से जूझते चलेंगे। तो वाकई डेस्क पे काम करना चाहिए, वाकई राइटिंग करनी चाहिए। इससे आपकी काबिलियत में, कहते हैं ना कि सोने की माला में ही डायमंड खिलता है, डायमंड की माला कभी नहीं बनाई जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही है। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं और अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप में 4 चांद लगा देगा। हाउ कैन जर्नलिस्ट डिबंक इन मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19? ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। डिबंक तो गवर्नमेंट ने किया। याद कीजिए, कहा था कुरुक्षेत्र में 18 दिन का युद्ध हुआ था और उसके बाद जीत मिल गई थी, सत्य की जीत हुई थी। तो 18 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन 18 दिन के बाद तो हमने बताया कि 7 महीने बीत गए। तो डिबंक तो गवर्नमेंट करती है, मीडिया का रोल इसमें और जर्नलिस्टों का रोल शायद बहुत कम होता है, और जर्नलिस्ट उस रूप में करता नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन। हाउ कैन जर्नलिस्ट कैन स्टे सेफ व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द अनप्रेजेंटेड पैंडेमिक? ये मुश्किल तो है, और इसकी एक ट्रेनिंग होती है। आप लोग को जान के हैरत होगी कि यूनाइटेड नेशन में की एक शाखा है जो कि युद्ध के क्षेत्र में कैसी रिपोर्टिंग हो, इसकी भी ट्रेनिंग देती है, और महामारी के दौर में कैसी रिपोर्टिंग हो, इसकी भी ट्रेनिंग देती है। और आप लोग को नेट पर जाकर देखना चाहिए कि कैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट ना सिर्फ इसकी गिरफ्त में आए, बल्कि कई की डेथ्स भी हो गई रिपोर्टिंग करने के बाद। और डेथ जिनकी नहीं हुई, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई जो कि बूढ़े बुजुर्ग थे। यह भी हमने देखा और अपने ही कलीग्स में देखा ये। तो यह तो एक मुश्किल सवाल भी है, और शायद हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हर क्षेत्र में लोगों को नौकरी चाहिए, तो नियम कायदे मायने ही नहीं रखते हैं। नियम कायदे दरकिनार कर दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के जरिए भी कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं देखती है। गवर्नमेंट सिर्फ आसमान में हवाई जहाज उड़ा के फूल छिड़क देती है, कहती है हमने वीरों का स्वागत कर दिया। ये इस पे भी हम लोग को कमेंट करना चाहिए। What are your views regarding the work of government in this fight against the pandemic? खुशी नागपाल 3C, मेरे ख्याल से बहुत खराब काम किया है, और पहली बार इस देश के भीतर में किसी बीमारी ने इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वो एम्स हो, चाहे वो इस देश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, स्थिति नाजुक है। इसीलिए दिल्ली जैसी जगह में भी दिल्ली सरकार को कहना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमको 80% बेड्स दे दे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कहा जनाब हमारा बिजनेस मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कह दिया नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दिया गया। इसका मतलब है हमारे पास इस देश के भीतर में मुश्किल हालात का सामना करने के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं था, और इस मौजूदा पैंडेमिक ने इस देश के मेडिकल चीजों को क्रिएट ऐसा कर दिया कि कितने खतरनाक वे में है। और हमको एक और चीज लगता है, किसी भी देश की प्रगति के 2 रास्ते जरूर होते हैं, एक मेडिकल और दूसरा एजुकेशन। इस पैंडेमिक ने एजुकेशन को लेकर भी कलई खोल दी। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में हम लोग इक्विपमेंट के लिहाज से ऑनलाइन बच्चों को ना पढ़ा सके ना परीक्षा ले सके। 27% उनका अटेंडेंस रहा। इस मने SLR की लड़की जो श्रीराम कॉलेज है, उसकी लड़की ने इसलिए खुदकुशी कर ली, जो तेलंगाना की रहने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर बड़ी अच्छी स्टोरी फाइल की थी, हमने भी वहां समझा बुझा, उन लोगों से बातचीत करके हमने भी फाइल की हालांकि स्टोरी। लेकिन सोचिए उसके पास लैपटॉप नहीं था और उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। परिवार के पास पैसा नहीं है लैपटॉप का। एक ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि हम लोग के पास स्कॉलरशिप है देने के लिए, मेंटली कोई परेशान हो रहा है उसके लिए काम करने की स्थिति होती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्राइम यूनिवर्सिटी है देश की, उसके भीतर भी LSR सरीखा कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज है, बाकियों का जिक्र क्यों करें और क्या करें। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों को इस पर बड़ा काम करना है, दबाव बनाना है सरकार पे, लेकिन सरकार मदमस्त है, क्या कीजिएगा। वो अपने तरीके से जी रही है, पैसा अपने प्रचार में व्यर्थ करती है। क्या आपको क्या लगता है आज भी जाति के नाम पर क्राइम है? आयुषी वर्मा 3C, क्राइम है जाति के नाम। जाति तो भारत का एक सच है। भारत की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जाति जो है वह लोगों को एक दूसरे के निकट उन इलाकों में ज्यादा तेजी से ले आती है जिन इलाकों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। अगर आपको
अपना काम करना है तो आप विधायक जी से मिलने जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, दिल्ली आते हैं तो सांसद से मिलते हैं, ब्राह्मण है तो बोलेंगे भाई ब्राह्मण है हम, तो किसी ब्राह्मण वाले से मिलेंगे आप, कोई दलित है तो दलित वाले से मिलेगा। जाति भारत का अनूठा सच इसलिए है क्योंकि भारत में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, इसीलिए कास्ट है। जिस दिन भारत प्रोफेशनली चीजों को डेवलप करने लगेगा उस दिन कास्ट नहीं रहेगा, और प्रोफेशनली डेवलप तभी कर सकता है जब आपके हाथ में डिग्री होगी तो आपको काम मिल जाए। अगर काम नहीं मिलेगा और आपको बता दिया जाए, सवाल था ये किसका, आयुषी वर्मा, बिहार पता नहीं आप क्या है, लेकिन बिहार में वर्मा जो होता है ये कायस्थ होता है। शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ है, रविशंकर प्रसाद कायस्थ है। तो रविशंकर प्रसाद को शत्रुघ्न सिन्हा की सीट पर इसीलिए खड़ा किया गया क्योंकि पटना में कायस्थों की भरमार है। कायस्थ उन्हीं को वोट देते हैं, कायस्थ किसी दूसरे को वोट नहीं देते। अब आप क्या कीजिएगा, पटना जैसी जगह में आयुषी वर्मा को अगर लगने लगेगा कि किसी सिन्हा के पास हम जाएं और काम हो जाएगा मेरा, तो वो उसी के पास जाएगी। और जब किसी संपादक को देखेगी तो बोलेगी मैं तो, या वर्मा अगर होगा तो बोलेगी मैं वर्मा वर्मा हूँ। जबकि काम आपको मिल जाना चाहिए, आपके पास डिग्री है, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज ने आपको फर्स्ट क्लास नंबर से पास किया है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं है क्योंकि हमने चीजें क्रिएट ही नहीं की है। ये गजब का संकट है इस देश के भीतर का, इसीलिए इन चीजों को लगातार जागृत किया जाता है, लेकिन इसके लिए शब्द क्राइम सही नहीं है। ये हमारी रूढ़िवादिता है और ये हमारे जिंदगी में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने पर जीने की जरूरत बना दी गई है। यू हैव बीन अमंग द टॉप 10 मोस्ट एक्टिव इंडियन जर्नलिस्ट 2015। कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। वत्सल उमर का ये सवाल है कि यू हैव द कंट्रोवर्सी नोटेबल प्राण मास्टर स्ट्रोक में आपने कंट्रोवर्सी पैदा की थी, इसका भी कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। Does reporting against the ruling government will always be against the reporter and the news? हमें नहीं लगता ये वत्सल कुमार का ये सवाल ठीक है। Does reporting against the ruling government will always be against the reporter and the news? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी जो सेकंड टर्म में थी, हम उसके बहुत खिलाफ थे और उस समय तक वो लेफ्ट का साथ भी छोड़ चुके थे, समाजवादी पार्टी भी छोड़ चुके थे, न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हो गई थी। और आपको जानकर हैरत होगी, उस समय राहुल गांधी धीरे धीरे निकल रहे थे और राहुल गांधी की जो लाइन थी, चाहे वो ट्राइबल्स को लेकर लाइन हो, डेवलपमेंट को लेकर लाइन, वो मनमोहन सिंह से अलग थी। उसी पीरियड में मनरेगा शुरू हुआ था, उसके बाद उसी पीरियड में राइट टू फूड शुरू किया गया था। तो मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को लेकर हम विरोध करते थे। और आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि बाकायदा पीएमओ से हमको फोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग जानना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पर एक डायरेक्टर्स को डिप्यूट किया गया था। हम डायरेक्टर का नाम बोल रहे हैं, डायरेक्टर उस समय शायद संधू साहब थे कोई, अब तो रिटायर हो गए, वो थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ नहीं, और खास तौर से एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेकर बातचीत हो रही थी। यह भी आपको जानकर हैरत होगी, बड़ी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप जो चाहते और सोचते हैं उसको हमको एक मेल भेजिएगा। हमने उन्हें मेल भेजा और 2010 के बजट में उसको, हमारे मेल में जो सुझाव दिए गए थे उसको शामिल किया गया। हम तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मौजूदा वक्त की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जब हमने इन बातों का आपसे जिक्र किया, थोड़ी अलग स्थिति है क्योंकि इनकी सोच थोड़ी अलग है। हम एक चीज और आपको बता दें, समूचे भारत को पॉलिटिकली देखने की स्थिति में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य जो है जिन्होंने विभाजन के बाद से भारत को देखा भोगा है। लेकिन जब आप महाराष्ट्र भी कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नीचे जब आप चले जाते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो या केरल हो, इनके ताल्लुकात समूचे देश की हर कम्युनिटी के साथ वैसे नहीं रहे जो यहाँ की कम्युनिटी के लोगों के। पंजाब तो सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो भारत को देखने और समझने की सोच जो होती है वह संयोग से हमारे प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए। इस बात को पहली बार इस दौर में महसूस किया गया है। समूचे देश को आपको एक समान देखना होगा, सिर्फ सबका साथ सबका विकास से काम नहीं चलेगा। और ये नजरिया तभी आप में आ सकता है जब आपने उन चीजों को बहुत बारीकी से देखा समझा हो।
संघ परिवार ने समूचे समाज को नहीं देखा उस रूप में। ये फैक्ट है, इनका इतिहास। हमने किताब लिखी, आप जब जिक्र कर रहे थे शुरू में हमारी किताब, हमने एक नई किताब लिखी आरएसएस पर। ये किताब है आरएसएस पर जो हमने नई लिखी है, आरएसएस के जो सफर है पूरा का पूरा। मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इसलिए पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में परसेप्शन कुछ नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के साथ चीजों को बता दिया गया है कि ये है आरएसएस। तो किसी भी स्वयंसेवक के लिए भी ये बड़ी शानदार किताब है। तो ऐसा नहीं होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट खिलाफ हो जाती है रिपोर्टर के या न्यूज एजेंसी या न्यूज संस्थान के, ऐसा होता नहीं है। उससे तो टकराव होता है तो चीजें और आगे बढ़ती है। राजीव गांधी ने विनोद दुआ को बुला के कार्यक्रम शुरू दूरदर्शन पे करा दिया और कहा कि हमारे मिनिस्टर से आप बात कीजिए और बताइए कि उनके मंत्रालयों ने क्या क्या काम किया है। बाकायदा विनोद दुआ हॉस्पिटल में काम करते थे और उनको ग्रीन सिग्नल था हर मंत्रालय में जाके तमाम ब्यूरोक्रेट से बात करके, और मंत्री को बुलाया जाता था और उससे डिस्कशन कर पूछते थे, जिसका सीधा प्रसारण होता था। तो ये तो राजीव गांधी की खासियत थी। हम लोग धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, अपने आप में बंद होते जा रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है। रोहित गुप्ता का भी सवाल है कि कैसे आप पर सच ना दिखाने के लिए दबाव डाला गया। हमको लगता है इसका कोई इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। 23 सवाल थे, 23 सवाल और एक आखिरी सवाल, हाँ, जो सबसे पहला सवाल था हमने उसको जानबूझ के छोड़ दिया था कि सबसे आखिर में जवाब देंगे। ये सवाल था एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है यह बिजनेस मॉडल पर नहीं टिकी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल पर टिकी होती है। मौजूदा वक्त में हम बोल रहे हैं, खासतौर से जब हम एक इस देश के भीतर में न्यू इकोनॉमी को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो होता है, हम उसमें थोड़े से जो कैमरा यूज करके जो शूट किया जाता है, हमें लगता है वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। वो आपने बिना सामने वाले को बताए चोरी से चीजें डेवलप कर ली। उसका उपयोग तभी होना चाहिए जब हमारे पास उससे जुड़ी हुई रिपोर्टिंग का एक बड़ा कंटेंट हो और उस कंटेंट को सामने वाला नकार रहा हो, तब उसको दिखा देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि उस छुपे हुए कैमरे को ही सच मानने लगे और उसी के जरिए चीजें दिखाने लगे। और ये फैक्ट है भारत के भीतर में, शायद किसी भी व्यक्ति का, उससे जब आप बात करेंगे तो वह कुछ और बात करेगा, लेकिन कैमरा जैसे ही चलेगा वो कुछ और बात करने लगता है। ये अजीब। और कैमरा अगर छुपा हुआ है तो फिर वो वही बात करेगा जो कैमरा दिखाई देने पर जो करता वो नहीं करेगा। ये सारी चीजें अलग अलग है। लेकिन हमको काम ऐसा करना चाहिए जिसमें भरोसा लोगों का जुड़ाव के साथ जागृत हो। यानी हमको अपनी रिपोर्ट में लोगों को जरूर जोड़ना चाहिए, वह लोग जो उस बात से प्रभावित हो रहे हों जिसको लेकर आप रिपोर्ट फाइल करने गए हों। और एंटरप्रेन्योरशिप की जिक्र जो जिसका हो रहा है, इसको अगर जर्नलिज्म से जोड़ते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप में, ये भारत में बहुत मुश्किल सवाल है। अभी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जर्नलिज्म को खड़ा कर पाना ये इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि मौजूदा सरकार तो चाहेगी कि आप उसके साथ ही खड़े हो जाएं, वो आपको एंटरप्रेन्योर भी बना देगी। और मेरा ये मानना है कि हर देश में हर राज्य की सरकारें जो है वो बड़ी करप्ट है इस मामले में। मीडिया को लेकर सिर्फ अपना हित चाहती है, अपने अनुकूल चाहती है, दो लफ्ज अपने खिलाफ नहीं सुन सकती है। तो ऐसे लोगों से हमको लगता है कोई जर्नलिज्म का जिक्र करना ठीक नहीं है। अब आप बताइए, आपके कुछ सवाल हो तो ठीक है, क्योंकि हमको 3 बजे निकलना भी है। जी सर, काफी सवाल आए हैं इस बीच जब आप हमें बता रहे थे। 10 मिनट का समय है, फटाफट बोलिए। सबसे पहले पलक जायसवाल का सवाल है, वो आपसे पूछना चाहती है कि जैसे आपने बताया कि भारत सरकार ने ये जो पैंडेमिक था तो स्कूल कॉलेज नहीं खोले, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे लोग इतने शिक्षित और इतने इन्फॉर्म्ड नहीं है कि अगर स्कूल या कॉलेज खोले जाते तो क्या वो इस चीज को जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क पहनना है या ये चीजों का ध्यान रख पाते? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, सरकारी स्कूल से ही देते हैं, चाहे वो सर्वोदय स्कूल लीजिए, चाहे सेंट्रल स्कूल लीजिए, यानी केंद्रीय विद्यालय लीजिए, कोई भी स्कूल लीजिए। इन स्कूलों में जो कैपेसिटी है बच्चों की, वो प्रति क्लास मैक्सिमम 60 बच्चों की कैपेसिटी है। और मैक्सिमम स्कूल सिर्फ एक ही वक्त चलते हैं, यानी सुबह चलते हैं, शाम में नहीं चलते हैं। डेवलप कंट्रीज में तो सारे स्कूल इस रूप में हैं। वहां पर क्या किया गया कि बच्चों को बांट दिया गया। जैसे 60 बच्चे हैं तो हर बच्चा सिर्फ स्कूल जो आएगा और उसको 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया गया, सुबह और शाम दोनों कर दिया गया। तो सुबह शाम डिवाइड होते ही हम मैक्सिमम 60 बच्चे बोल रहे हैं। सामान्य तौर पर 35 से 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं। यानी उस क्लास के भीतर में एक वक्त में 20 बच्चे बैठ सकते हैं, जो कल तक 40 बच्चे बैठते थे। अगर हमने 2 शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया
पहला हिस्सा ये हुआ। दूसरा हिस्सा हुआ, उस 10 अगर 20-20 क्लास में नहीं बैठाने हैं, सिर्फ 10 ही बैठाने हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो उस 10 बच्चों को भी हमने जो 6 घंटे का स्कूल चलता है उसको 3 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। यानी 12 घंटे के भीतर में 4 टाइम 3-3 घंटे का स्कूल चल रहा है। इस रूप में डिवाइड कर दिया गया, बच्चों को उसी रूप में हर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। और मास्क और सैनिटाइजर के लेवल में इस देश में बहुत बना इस दौर में, और वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत पैसा दिया, इसी के लिए पैसा दिया है। हम लोग चाहते तो ये क्रिएट हो सकता था, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट स्कूल जाकर ही होता है। एजुकेशन से ज्यादा बच्चों का आपस में देखना, समझना और डिस्कशन होता है। हमें नहीं लगता है कि वर्ल्ड वाइड, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, अगर वहां पर चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती है। और खासतौर से भारत जैसी जगहों में जहां पर अभी भी स्कूल का उपयोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है और फिर वो चले जाते हैं, फिर स्कूल में ताला लग जाता है। दुनिया में ऐसा देश भी आपको बहुत कम मिलेगा डेवलपिंग स्टेट्स में जहां पर स्कूल में ताला लग गया हो। कर सकते थे, हमारे पास सिस्टम होता तो हम कर देते। जी जी, अगला सवाल है, ये अंकित सिंह है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी से। ये पूछ रहे हैं कि आज के दौर में क्या बेबाक पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है? और दूसरा ये कह रहे हैं कि जैसे अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने संसद में एक बिल पास किया है जिसके तहत उनके खिलाफ अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद है? तो उनको जानकारी दीजिए, ये भारत में उम्मीद नहीं है, भारत में ये हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उनके खिलाफ 3 केस चल रहे थे, उसमें एक मर्डर का केस भी था जहां तक हमको याद है। 3 केस बड़े सीरियस क्राइम के चल रहे थे। उन्होंने आके पहली कैबिनेट बैठक की और कैबिनेट बैठक में कह दिया कि तीनों केस मेरे ऊपर से हट जा रहे हैं और कैबिनेट का डिसीजन है। उसके बाद वहां पर कितने मंत्रियों के केस हटते चले गए, यानी पूरी जुडिशरी का कोई महत्व नहीं बचा। तो भारत में ये हर तरीके से हो रहा है। इसका दूसरा रूप आपको नए तरीके से सेंटर में नजर आएगा, जिसमें जस्टिस लोया का केस है या सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मामला है। भारत में ये सारी चीजें बड़ी शालीनता के साथ होती है और खूब चल रही है, तो ये हो रहा है। और बेबाक पत्रकारिता करने में कोई गुनाह नहीं है, कर सकते हैं। एक और सवाल है प्रत्यक्ष शर्मा का। ये पूछ रहे हैं कि जो अभी यूएपीए का एक्ट लगाया गया एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो केरला से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा, ये जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ऑर्डर आया है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगे एंड उनको रेगुलेट करेंगी, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हमारा बड़ा साफ मानना है, हम लोग वक्त जाहिर करते हैं इन सवालों को करके और इन सवालों में फंसकर, क्योंकि जिस देश में आपने मान लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या नहीं कर पा रही है, तो ये बड़ी छोटी सी चीजें है कि ओटीटी में ऐसा हो गया, अरे कल कुछ और हो जाएगा, परसों वो आपके घर में घुस जाएंगे, तो घुसने दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं? और केरल के जर्नलिस्ट का जो बात है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उसने उसी तरह के केस एक दूसरे केस में डिसीजन लिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे खत्म हो रहे हैं, ये उसके परिचायक है, इसमें हमारे किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। जी, एक सवाल है शिव धवन का। ये पूछ रहे हैं कि आज की डेट में न्यूज एंकर्स जो हैं वो एक तरह के ब्रांड बन गए हैं और इतने बड़े ब्रांड बन गए हैं कि वो चैनल से ज्यादा बड़े बन गए हैं, तो क्या ये जो आने वाले दौर में चैनल्स हैं उनके लिए एक थ्रेट है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रांड व्रांड कोई नहीं बना है, सब अरे सब ऐसे ही है, पता चल जाएगा, कुछ इंतजार कीजिए। ब्रांड नहीं कोई बनता है जर्नलिस्ट से बड़ा ब्रांड कुछ नहीं होता अगर वो जर्नलिस्ट है तो, और वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है। उसके लिए उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मॉडलिंग करनी पड़ेगी, तब वो ब्रांड बनेगा। सर बस एक आखिरी सवाल है, ये आकृति सिंह है 3C की छात्रा है। ये पूछ रही है कि अगर हम किसी को इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए वो हमसे कुछ मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है या कुछ ऐसी सिचुएशन करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से उस चीज को संभालना चाहिए? ये क्या क्वेश्चन है? एक और सवाल जुड़ा हुआ था कि सामने वाला अगर बहुत रिजिड हो, हम उसको पढ़ नहीं पाए, हमने चेक किया था जी। लेकिन हमें तो नहीं समझ में आया वो मिसबिहेव कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हमको लगता है कि आपके पास जब आप तैयारी करके जाते हैं तो आजकल के दौर में टेलीविजन की दृष्टि से देखिएगा तो टेलीविजन हर चीज देख रहा है, वो मिसबिहेव तो करेगा नहीं, क्योंकि टेलीविजन में आप सारी चीजों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और सामने वाला कुछ भी बोले हम तो उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और सामने वाला अगर बहुत पावरफुल आदमी है तो कुछ भी कर सकता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो आपने खत्म कर दिया इस देश के भीतर में। तो हमको लगता है इसमें घबराना
कतराना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कैमरा नहीं है, आप प्रिंट में गए हैं ये, और उसके बाद कोई अगर आप लोग सिर्फ इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू देने वाला है, मार ही दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए किसी का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल में सभी जो सवाल थे उनके जवाब दिए। मुझे पता है कि अब समय की बड़ी कमी है आपके पास में, तो हमारे साथ डीजी सर जस्टिस भंवर सिंह सर शुरू से जुड़े हुए हैं और वो पूरी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे अब अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। जी सर। आपने मुझे उस वक्त बुलाया जब प्रसन्न जी जाने वाले हैं और 2 मिनट में क्या बोला जा सकता है। मैं प्रसन्न जी का स्वागत करता हूं, वाजपेयी जी का स्वागत करता हूं, उनका प्रशंसक रहा हूं बहुत पहले से। अभी अमरीश सक्सेना इस वेबिनार से पहले आए थे, मैंने उन्हें बताया था। ये मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट था और प्रसन्न जी बहुत अच्छा बोले। इनके बोलने के बाद किसी की बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मैं जरूर ये कहता रहूंगा कि आप प्रसून जी, वाजपेयी जी हमारे यहाँ जरूर आते रहें और हमारे बच्चों को, और बहुत अच्छी अटेंडेंस रही, मैं देख रहा था कि उन्हें जर्नलिस्ट बनने का शौक है। उन्हें आप अपने टिप्स देते रहें और जो टिप्स आपने दिए, जो विचार आपने रखे, उनको सुनकर सभी, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और वाकई किसी भी जर्नलिस्ट को बोल्ड, ब्रेव, फियरलेस होना चाहिए, जो प्रसून जी आप हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डीजी सर। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी डीएमई मीडिया स्कूल की हेड प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता बालाजी से कि वो आए और जो धन्यवाद ज्ञापन है वो प्रस्तुत करें। मैम प्लीज। थैंक यू मोहित। इतना सर ने इतने अच्छे अपने विचार रखे, इतना मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सर को मैंने बार बार आग्रह किया था कि हम कॉलेज में बुलाएंगे, लेकिन सर के पास समय की क्राइसिस थी और सिचुएशन ऐसी हुई कि वो उस समय नहीं आ पाए। लेकिन अब हम ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही सारी चीजें स्थितियां ठीक होती हैं, तो जैसे सर ने कहा, भंवर सिंह सर ने, कि हम उनको कॉलेज में बुलाना चाहेंगे, बुलाएंगे, तो सर वाजपेयी से हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कॉलेज आके बच्चों के संग में फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, तो हम लोग बहुत खुश होंगे। और थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, क्योंकि थैंक्स शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना छोटा सा शब्द है थैंक्स कहना। इतना मोटिवेशन और इतनी सारी बातों के बाद हम केवल आपको आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हम लोगों के साथ देने के लिए। So thank you to all of you. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। बस एक आखिरी चीज, अभी हमारे साथ हमारे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के वाइस चेयरमैन श्री अमन साहनी भी जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो कृपया 2 शब्द कहें। अमन सर प्लीज। अमन सर। जी सर। थैंक यू। मैं बस कहना चाहूँगा थैंक यू हमारे गेस्ट को, उन्होंने इतना अच्छा सबको टाइम दिया, सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करी, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी ग्रेटफुल to Mr. Punya Prasanna Bajpai for being with us today, and I'm sure सब students के लिए this was a very informative session where they got to learn a lot. So my best wishes to everyone. Thank you to Mr. Bajpai for sharing his time. Thank you so much, Aman sir, for being a part of this session. And thank you very much, Mr. Punya Prasoon Bajpai, for giving out time to our students. And thank you, DG sir, Amrish sir, and Bala ma'am, and all the faculty members, plus students who have asked pertinent questions. Thank you very much. Thank you. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a 2-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher.
At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students.